कोई बताएगा क्या इम्पोर्टेंस है इंजन बिल्डिंग की, या एग्जैक्टली क्या है इंजन बिल्डिंग और क्यों कर रहे हैं हम? एनीवन? करो यार, कुछ भी गलत बोलो, सही बोलो, लेकिन बोलो। And today I am very happy that he has agreed to deliver this technical science seminar for the मैं यहाँ ये भी रिक्वेस्ट करूँगी शर्मा जी से, along with the technical seminar, we did not have any such facility in Bhopal. He is the first person who has started this kind of services in Bhopal. So along with the technical seminar, I think he should also share with all of us his entrepreneurship journey, so that you can inspire, take inspiration and start something of your own, right? And regarding the topic of the seminar today, Audi cars are well known for their comfortable ride and superlative performance. I am sure he will be able to give a very good technical seminar. I expect students to hear the speaker with questions, and he has promised to deliver a very good seminar, and equally it is from equal effort should be made from your side to listen in peacefully, sensibly, and during the course if you have any queries, he will be so yeah, we extend a very warm welcome to everybody, and let us all of us are waiting for his experiences, his input regarding the DMA. अपने लिए ताली बजाइए अच्छे से। अब लग रहा है कि हम ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के बच्चों के साथ में बैठे हैं। तो आज हम लोग जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं प्रैक्टिकल इंजन बिल्डिंग, तो आज का पूरा जो हमारा सेमिनार है या जो हम जो भी बात करेंगे, इस सब की अंडरलाइनिंग एक ही चीज़ रहेगी, और वो है वाई। हम क्या कर रहे हैं वो बाद में आएगा, हम जो भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं वो सबसे पहले आएगा। हम अपना इतना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ बैठे हैं, कोई बताएगा क्या इम्पोर्टेंस है इंजन बिल्डिंग की, या एग्जैक्टली क्या है इंजन बिल्डिंग और क्यों कर रहे हैं हम? एनीवन? गलत सही की चिंता मत करना। आज 2 घंटा 2.5 घंटा जितनी भी देर आप मेरे साथ हो, गलत सही को आज इस कमरे के बाहर रख देना। बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान मत देना कि आप कुछ बात गलत ना बोल दो। बोलना ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आई कैन बी रॉन्ग बट आई एम नेवर इन डाउट। अगर आप ये एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो हो सकता है कुछ गलतियां होंगी, जो काम करता है उसी से गलतियां होती हैं, लेकिन आगे तभी बढ़ पाओगे। इसीलिए आज गलत सही की चिंता मत करो। बताओ जिसके दिल में जो है, प्रैक्टिकल इंजन बिल्डिंग या इंजन बिल्डिंग पर से क्या समझते हैं आप लोग उससे? इंजन रीबिल्डिंग, हम इंजन की वर्किंग जानने के लिए, ठीक है। और कोई? वेरी गुड, थैंक यू। बैठो। और कोई? Definitely. Anyone else? Anything that an engineer has invented, it needs to be remodeled as well by several different manufacturing. Only one company can never have a patent of a single engine. To clearly understand the engine working, the engine different components, we need to deeply understand its construction, its dimensionings and various things, that what are the exact parts. So some parts are clearly not visible from the exterior end of the engine. We need to delve into the inside of the engine to get the inside of the minor instruments or components that are getting used in the engine working. So sir, being an automobile engineer, we should know that how to rebuild an engine from the scratch as well. Okay. अच्छा, यहाँ पे पूरे सेशन में लड़कियाँ कितनी बैठी हैं? आप लोगों को विशेष पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। सबसे पहले तो तालियाँ उन लड़कियों के लिए जिन्होंने मैकेनिकल जैसी और उसमें भी ऑटोमोबाइल जैसी ब्रांच को लिया। तो आज अपने आप पे विश्वास करिए और पार्टिसिपेट करिए। जब हम अनजानों पे इतना विश्वास कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ के बारे में भी परवाह नहीं कर रहे हैं, उस प्लेन में बैठ रहे हैं, उस ट्रेन में बैठ रहे हैं, तो मैम ने जैसे कहा एंटरप्रेन्योरशिप, तो
सबसे पहली चीज़ यही आती है कि आप अपने आप पे कितना विश्वास कर रहे हैं. यू कैन बी रॉन्ग बट यू शुड नेवर इन डाउट. तो हम इंजन बिल्डिंग क्यों करते हैं, एक और सवाल फिर मैं बताऊंगा. To choose our own need, because everything, like even a different, not all the companies have the same specifications or dimension. They do make their innovation in themselves. So like engine building in that term, it really helps to like analyze yourself, to bring your own thinking or the knowledge to you. गुड, थैंक यू. तो आप सभी ने जो जवाब दिया उस सब की एक कोर जो मैं कहूँ एक फिलॉसफी थी, वो थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर आप लोग जिस थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं, तो हम किसी चीज़ को ऑब्वियसली इसलिए खोल के देखते हैं, हम उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या बना है, क्यों बना है, मेजरमेंट्स क्या है, क्या चीज़ ये ऐसी ही क्यों है. जैसे मैंने कुछ लोग जो शुरू से बैठे थे, मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी कि मैंने इन कंपोनेंट्स को यहाँ इसी ऑर्डर में क्यों रखा है, जैसे जैसे खोलता गया वैसा ही वैसा क्यों रखा गया. हर एक चीज़ का एक रीज़न है, कुछ भी इन वेन नहीं है या कुछ भी बस करने के लिए नहीं किया है. ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. अदरवाइज हम जो कहते हैं प्रैक्टिकल इंजन रीबिल्डिंग, तो हम इंजन रीबिल्डिंग इसीलिए कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसके अंदर कुछ खराबी आई होगी तभी तो हम उसे खोल रहे हैं. अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, तो कुछ खोलने का कारण मैं ये सोच सकता हूँ कि कुछ खराबी आई होगी. फेलियर एनालिसिस, एक्चुअली में उस फेलियर को एनालिसिस करने के लिए मुझे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस की ज़रूरत है. तो वो कैलकुलेशंस क्या हैं? वो कैलकुलेशंस इसके कंपोनेंट्स का क्लियरेंस, टॉलरेंस, तो इसको हम कहते हैं इंजन की ब्लूप्रिंटिंग. हम ब्लूप्रिंटिंग करने के लिए इंजन रीबिल्डिंग करते हैं. ब्लूप्रिंटिंग से ही हम समझ पाते हैं कि किसी दो इंजन में क्या अंतर है. अगर आप वैग ग्रुप का, जैसे ये डीजल इंजन है, वैग ग्रुप का अगर ये डीजल इंजन है, अगर आप इसका पेट्रोल इंजन भी देखेंगे तो कुछ कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा. लेकिन उन दोनों में अंतर क्या है वो आप समझोगे जब आप इसकी ब्लूप्रिंटिंग करोगे. वो ब्लूप्रिंटिंग करने के लिए जिन प्रिसीशन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है वो आपके सामने रखे हैं, वो हम जैसे जैसे करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे. अब ये तो हो गया फेलियर एनालिसिस, देन ब्लूप्रिंटिंग हो गया, देन फिर आती है रीबिल्डिंग. हमने नया कंपोनेंट लिया. अब जैसे मैं गया मार्केट में और मैंने कहा कि मुझे 2 लीटर इंजन के पिस्टन रिंग का सेट चाहिए. मुश्किल होगा मिलना, लेकिन मिल जाएगा. महंगा सस्ता वो बात की बात है, लेकिन मिलेगा. अब होता क्या है, जब कोई भी इस तरह का कंपोनेंट मास लेवल पे बनता है, तो एक हाई स्पीड इंजन के अंदर में वो चल सके और रिलायबली चल सके, इस चीज़ के लिए उन हर एक कंपोनेंट की कैलकुलेशन या मेजरमेंट बिल्कुल एक जैसी हो, वो पॉसिबल नहीं होता. तो एक ऑथेंटिक इंजन बिल्डर या प्रोफेशनल इंजन बिल्डर के लिए ज़रूरी होता है कि वो ऑफ द मार्केट बस सामान ले ले और कस दे, तो फिर उसमें और एक किसी भी ओपनिंग फिटिंग वाले में कोई अंतर नहीं होगा. तो वहीं पे ब्लूप्रिंटिंग अगेन काम आती है.